آپ کو خداوند نے فتح دی ہوئی ہے اور آپ کو خداوند فتح سے بڑھ کر غلبہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں کل رات ایک جگہ پہ کلام سنا رہا تھا، اس کلام نے مجھے بڑی برکت دی۔ میں سنا رہا تھا، میں خود بھی بڑی برکت پا رہا تھا ان آیات سے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ کیا پاؤ؟ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ میں بتا رہا تھا کہ جب ہم بچے ہوا کرتے تھے تو ہمیں یہی سکھایا جاتا تھا کہ یسوع کو قبول کرو گے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے کیا سیکھا؟ ویسے میں جب بچہ تھا اس طرح کا تو ہمیں شروع سے یہی سکھایا گیا کہ یسوع کے پاس آؤ گے مشکلاتیں دور ہو جائیں گی، قبول کرو گے مشکلاتیں دور ہو جائیں گی۔ پاسٹر ہمیں یہی سکھاتے ہیں، یسوع کے پاس آؤ گے مشکلاتیں کیا ہو جائیں گی۔ کیا یہی نہیں سکھاتے؟ ہم بھی یہی سکھاتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن رات کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع کے پاس آنے سے ہماری مشکلاتیں تو دور ہوں گی، لیکن ہمیں خداوند کیا کرے گا؟ خداوند ہمیں مصیبتیں اٹھانے کے لیے فضل بھی دے گا، ہمیں خداوند گریس دے گا۔ ہمیں شروع سے یہی سکھایا گیا ہے، یسوع کے پاس آؤ گے دکھ دور ہو جاؤ گے، لیکن خداوند یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو، دنیا میں تم مصیبت اٹھاتے ہو، تمہیں دکھوں میں گزرنا پڑے گا، تمہیں مصیبتوں میں سے گزرنا پڑے گا، تمہیں مشکلاتوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ میرے نام کی خاطر تمہیں بڑی دکھ اٹھانے پڑیں گے، تمہیں بڑی مصیبتوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم دکھوں کا حساب لگائیں، اگر ہمیں مسیح کی خاطر جو دکھ اٹھانا پڑیں گے، تو اگر ہم ان دکھوں کو کاؤنٹ کریں، جن کے پاس خدا کا کلام ہے نکالیے گا کرنتھیوں کا خط، جن کے پاس خدا کا کلام ہے جلدی سے نکالیے دوسرا کرنتھیوں نکالیے، جن کے پاس بائبل مقدس ہے نکالیے دوسرا کرنتھیوں چوتھا باب، چوتھے باب کی 8ویں آیت، ہم ہر طرح سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار حیران تو ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ ہم نے مسیح کو قبول کیا، ہماری زندگی میں اتنے غم کیوں ہیں؟ ہم حیران تو ہوتے ہیں۔ ہم نے مسیح کو قبول کیا، ہماری زندگی میں اتنی مصیبتیں کیوں ہیں؟ ہم حیران ہوتے ہیں۔ پالوس کہتا لیکن نا امید نہیں ہوتے، نا امید اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا خداوند آسمان پر ہے اور یہ دکھ اور مصیبتیں عارضی ہیں، چند روز کے لیے ہیں، ایک دن مٹ جائیں گی اور میں ہمیشہ کے لیے خداوند کے پاس رہوں گا۔
सुनिएगा पौलुस क्या कहता है, बड़ी खूबसूरत। वो कहता हम हैरान होते हैं, हम नाउमीद नहीं होते। कितने लोग हैं हैरान तो होते हैं लेकिन नाउमीद भी हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में इतने गम क्यों हैं? लोग हैरान होते हैं लेकिन नाउमीद भी साथ होते हैं। लेकिन पौलुस हैरान होता है, नाउमीद है। आप में से कितने लोग हैं हैरान हुए और नाउमीद भी हो गए खुदा से? कि खुदा ने मेरे लिए क्या किया है, खुदावंद मेरे लिए क्या कर रहा है, खुदावंद ने मेरे लिए क्या करना है। बड़ी दफा हम गिला करते हैं, शिकवा करते हैं। पौलुस कहता है हम हैरान तो होते हैं लेकिन मैं नाउमीद नहीं होता। हम ऐसे कितने लोग हैं जो हर रोज जिंदगी में नाउमीद हो जाते हैं और नाउमीद होकर खुदावंद की जात के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। आगे सुनिए, नामी सताए तो जाते हैं मगर लोग हमें सताते हैं। पौलुस कहता है सताने वाले बहुत से हैं, लोग हमें सताते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते। अकेले क्यों नहीं छोड़े जाते? क्योंकि खुदावंद हमारे साथ रहता है। लोग हमें सताते हैं लेकिन खुदावंद हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आपका बाप नहीं है, आपके बहन भाई नहीं है, आपकी बीवी नहीं है, आपका शौहर नहीं है, आपके बच्चे नहीं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर किसी भी पर्सन की वो है और खुदावंद की स्ट्रेंथ, खुदा उसके साथ हो, उससे बड़ी कोई भी उसके लिए ताकत नहीं होती। पौलुस कहता है लोग हमें सताते हैं लेकिन हम अकेले नहीं होते। खुदावंद मुझे हर रोज कुर्बत देता है। हर रोज लोग हमारे खिलाफ उठते हैं, हर रोज तूफान हमारे खिलाफ उठते हैं, हर रोज बीमारियां हमारे खिलाफ उठती हैं, हर रोज गुर्बत हमारे खिलाफ उठती है, हर रोज नंगापन हमारे खिलाफ उठता है, हर रोज पैसे की कमी हमारे खिलाफ उठती है, हर रोज हमारे बदन की ख्वाहिश हमारे खिलाफ उठती है, हर रोज हमें क्या दुनिया की चीजें सताती हैं हर रोज। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदावंद हर रोज ही मुझे अकेला नहीं छोड़ता बल्कि मेरे साथ रहता है और मुझे ताकत देता है। सताए तो जाते हैं, कभी आपका पेट आपको सता रहा हो लेकिन आपका मुंह शुक्र करता हो। आपका पेट सता रहा, आपके पास खाने को कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन आपका मुंह कह रहा खुदावंद तेरा शुक्र हो। सताए तो जाते हैं लेकिन अकेले नहीं छोड़े जाते। हमें सताया जाता है, वो ईमानदार ही नहीं है जिसको सताया ना जाए, वो ईमानदार ही नहीं है जो दुखों में से ना गुजरे, वो ईमानदार ही नहीं है जिसके खिलाफ लोग ना खड़े हों, वो ईमानदार ही नहीं है जिसको दुखों में से गुजरना पड़े। गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। गिराए, मिलके बोलिए, क्या कहते हैं? गिराए तो, लेकिन लोग हमें सिताते हैं, फिर गिराते हैं और गिराने के बाद सोचते हैं ये मर जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता इनको 100 दफा भी गिराओ ये हलाक नहीं हो सकते, ये हर दफा उठेंगे। दुनिया में तुम दुख उठाते हो, दुख उठाने से हम मैच्योर होते हैं, दुख उठाने से हम सीखते हैं,
मुश्किल हालात आपको अजीम इंसान बनाते हैं। जिन्होंने अपनी जिंदगी में दुख नहीं देखे वो कभी भी अजीम लोग नहीं बन सकते। सितारे गिराए हो जाते हैं, लेकिन हम हर वक्त अपने बदन में मसीह की मौत लिए हुए फिरते हैं। किस वक्त? हाँ, इतवार को नहीं, मंडे को नहीं, ट्यूसडे को नहीं, बुध को खाली नहीं। हमारे पास क्रिश्चियन संडे वाले मसीह है, इसलिए बेदारी नहीं है, इसलिए माशरा चेंज नहीं होता, इसलिए लोग बदलते नहीं। लोग चर्चिस में जाते हैं लेकिन लोगों के कैरेक्टर बिल्ड नहीं होते, और इसलिए लोग बदलते नहीं हैं जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं। पौलुस कहता है हर वक्त में हर तरह से अपने बदन में मौत लिए हुए फिरता हूं। ताकि मसीह की जिंदगी हमारे बदन पर क्या हो? हाँ, हम मौत उठाएंगे मसीह की, और मसीह की जिंदगी हमारी मौत के जरिया से जाहिर होगी लोगों के जरिया से। मसीह जिंदगी, सुनिएगा, इधर देखिए, मसीही जिंदगी कुर्बानियों का नाम है। हाँ, और जो कुर्बानी नहीं चढ़ाते वो मसीही जिंदगी नहीं गुजार। एक हवाला पढ़िए मेरे साथ जल्दी से, हमारे पास आज टाइम कम है। मैं दूसरा करंथियों निकालिए, जिनके पास खुदा का कलाम है, निकालिए जल्दी से। दूसरा करंथियों उसका 11वां बाब। मैं जब ये हवाला पढ़ रहा था तो मैं ना अपने आप को, इधर देखिए, जब मैं ये हवाला पढ़ रहा था तो मैं अपने आप को इस कदर मैं पढ़ के फिर मैं आपको बताता हूं मैं क्या महसूस कर रहा था। क्या 11वां बाब 23वीं आयत, क्या वही मसीह के खादम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर हुआ मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंड लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुद्र में काटा। मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम के खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबानों के खतरों में, समुंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्कत, और 12 बेदारी की हालत में, भूखा और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगे पाल की हालत में रहा। वाह, क्या फील कर रहे हैं आप? वैसे आप इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। मैंने जब ये हवाला पढ़ा तो मैं इस कद के मुताबिक, जो पलूस का कद है, उसके मुताबिक मैंने देखा हम तो पैदा ही नहीं हुए। पांच बार मैंने एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंड लगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मसीह की खातिर भूख उठाई हो?
भूखे रहे हो मसीह की खातर, मार खाई हो, कोड़े खाए हो, जलील हुए हो, खून निकाला हो अपना। हम खिदमत में बहुत पीछे हैं सब लोग। हमारे मसीही तो बहुत ही पीछे, वो तो चर्च नहीं आ सकते, वो खिदमत क्या जाने। पौलुस कहता है आप में से कितने लोग हैं हम तो मसीह के लिए कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बंदा अगर मसीह के लिए, तो देखिए अगर मसीह के लिए वो शर्ज किया, झाड़ू लगा रहा है, ये साउंड चला रहा है, ये गा रहा है, या सुनिएगा यहाँ पर कोई काम कर रहा है, तो शायद वो सोच रहा है कि मैं बड़ा काम कर रहा हूं, है ना? हाँ, उसके ज़हन में क्या आएगा? हाँ, या वो पहले आके इधर थोड़ा थोड़ा काम, वो सोचेगा मैं तो बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं मसीह के लिए। या वो किसी को अगर ले आए तो वो सोचेगा मैं तो बहुत ज्यादा खिदमत कर रहा हूं, मैं तो लोगों को विजिट करके लाता हूं। वो शायद यहाँ पर आके कुछ भी काम करता है तो वो सोचे मैं तो यहाँ पर गीत गाता हूं, मैं तो पास्टर साहब के लिए बड़ा काम करता हूं, मैं तो यहाँ पर ये साउंड आता हूं, मैं तो यहाँ पर लोगों को लाता हूं, मैं तो खुद बड़ा काम कर रहा हूं चर्च के लिए। मेरे अजीजों, अगर हम कलाम की रूह से देखें तो आपका और मेरा काम तो है ही जीरो। किसी काम का ये कोई काम है? ये तो कुछ भी नहीं है। कौन कहता है ये बड़ा काम है? यहां पर अगर हम कोई बयान के शीशे कर रहे हैं साफ या कुछ भी कर रहे हैं, हम सोचे हम बड़ा काम करते हैं चर्च में, मसीह का हम बड़ा काम कर रहे हैं। ये कौन सा काम है? हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, बोलो, ऊंची बोलो। हाँ, लोग क्या कहते हैं? वो सीधे बड़ा जोएल, हेलो, सीधा बोलो मैं तो बड़ा काम करता हूं चर्च के लिए। लेकिन मैं ये पढ़ रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि मैं तो अभी बड़ा निकम्मा बंदा हूं जाती तौर पर। शायद इधर देखिए, शायद लोग इसलिए कहते हैं कि लोग अनमचोर हैं, वो सोचते हैं ये बड़ा काम है, लेकिन बाइबल की रूह से ये कोई काम नहीं है। आपकी खिदमत जब बाइबल से तोली जाती है तो वो थोड़ी सी निकलती है। मीने हाँ, मीने टक्सीलो फसील, तू तोला गया तो क्या निकला? शायद मैं कैमरा चलाता हूँ, शायद मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, तस्वीरें खींचता हूँ, शायद मैं यहाँ पर पंखा ठीक करता हूँ, शायद मैं ये का, और मैं सोचता हूँ मैं इधर बैठता हूँ कि सोचता हूँ मैं बड़ा काम कर रहा हूँ मसीह के लिए, कुर्सी उठाता हूँ, मैं बड़ा काम करता हूँ, मैं चर्च के बड़े काम करता हूँ, मैं खुदा के बड़े काम करता हूँ। हाँ, मैंने पास्टर साहब को उठाया हुआ है, मैंने 5 बार कोड़े खाए, एक कम 40, 3 बार बैंड लगा, फाका कशी में, बियाबानों में, सर्दी में, तूफानों के खतरों में, समुद्रों के खतरों में। मुझे यहाँ पर जो भी कोई काम करता, मुझे ये कोई काम महसूस नहीं होता ये बड़ा काम करता है। कोई भी बंदा, मुझे पता है ये कुछ काम नहीं है, क्योंकि जब हम बाइबल की रूह से लोगों को जांचते हैं तो हमें महसूस होता है ये बहुत पीछे हैं अभी, इसलिए खुदा इन्हें बरकत नहीं दे रहा। पौलुस कह रहा है, क्या कहेंगे लोगों ने किसको बना लिया है? हवा। छोटे छोटे काम करते तो वो कहते हम बड़ी खिदमत करते हैं, ऐसा ही नहीं है? हाँ, बोलिए ना, झूठ नहीं बोलना। लोग क्या कहते, असी बड़ी खिदमत कर रहे हैं।
मुझे 5 बार कोड़े लगे, एक एक काम ही 40 कोड़े, मुझे शायद एक ही कोड़ा लगे और मैं कहूं मैं मसीह को नहीं जानता, मैं उसकी खिदमत नहीं करूंगा। पर उसको वो पहला कोड़ा लगाते, वो कहते मसीह मेरे लिए जिंदगी है। दूसरा लगाता, वो कहता मरना मेरे लिए नफा है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। मैं उसकी खिदमत करूंगा, मुझे मार भी डालो। यीशु मसीह ने एक दफा एक कम 40 कोड़े खाए हैं, लेकिन रसूल ने 5 दफा खाए हैं। ऐसे ही है, हाँ? ये कहना मेरे लिए दीवानगी होगी। मैं कहता हूं कि हम कुछ भी नहीं करते, मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं। ये कोई खिदमतें नहीं है जो हम करते हैं, ये अच्छी है, लेकिन ये उस लायक नहीं है जिस लायक मसीह खुदावंद है, जिस लायक उसकी इज्जत है, जिस लायक उसका रुतबा है, जिस लायक उसका जलाल है, जिस लायक उसकी कुदरत है। मैं क्यों पीछे हूं? क्योंकि मैं मसीह को उस तरह जलाल नहीं देता जिस लायक वो है। मैं बहुत पीछे हूं। हम में से कितने लोग हैं जो मसीह की खातिर, किसी ने देखा कोड़े खा रहा है, खिदमत कर रहा है, जान फशानी कर रहा है, लोगों के साथ लोगों को ला रहा है, रोता है। मैं चाहता हूं हम जब 10,000 मसीहियों को जोड़ लें, सबकी आंखें शर्मिंदगी से नीचे हो जाएंगी, एक बंदा भी नहीं निकलेगा। हम इबादत करके अपनी सिर्फ रूह बचा रहे हैं और हम मसीह के लिए कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर कोई भी बंदा आ गया, वो कुछ नहीं कर रहा मसीह के लिए। मेरे अंदाजा के मुताबिक मैं जाती कहूंगा, मुझे ये कोई इतनी बड़ी खिदमत नहीं है। क्या कहेंगे वैसे? हाँ, बोलिए बोलिए जरा, हाँ बोलिए, ऊंची बोलिए जरा, हाँ? कोड़े खाने में बार बार मैं कहता, हम 3 दिन जंगल में जाएं, हमें रोटी ना मिले मसीह की खिदमत के लिए, असी कहांगे यार छड़ पर घर में चलिए रोटी। जंगलों में हम रह सकते हैं, या ना पानी होगा। आप मेरे साथ चलें, 2 दिन इसी गाड़ी पे चलें, इसमें एसी भी है। 2 दिन आप लगातार मेरे साथ चलें, तीसरे दिन आप कहेंगे पास सब मैंने नहीं जाना, मैं थक गया हूं। हमें जितनी हम कुछ नहीं कर रहे, हमें मीने तकसीलो फसील मिलके बोलिए, तू तोला गया, हाँ? मैं भी काम नहीं कर रहा हूं। मैं जब पढ़ रहा था, मैं बड़ी गिल्टी फील कर रहा था। मैं कह रहा मैं तो इस लायक ही नहीं हूं खादम कहलाने के भी। तो लोगों ने थे रखा बिशप, वड्डा बिशप, छोटा बिशप, एडा आर्च बिशप, कम कखदा नहीं, बड़े बड़े ना रखे। ए डॉक्टर जो, ए रेवरेंड जो, ए बिशप जो, ए बिशपां दे उत्ते बिशप, खिदमत उसकी टकेगी नहीं है। हाँ? वो कहता मेरे लिए ये कहना दीवानगी होगा, मैं मुसीबतों में, दुखों में, परेशानियों में, फाके में, सर्दी में, गर्मी में, ना कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। नो वन कैन से। ते बारिश पै जावे, बारिश पै जावे, तेज बारिश, कोई चर्च आएगा तुम्हारे जो? कोई भी नहीं आएगा। गलियां च की जी पानी है, हाँ? बोलिए, बारिश हो 5 बजे, 6 बजे खत्म हो जाए, 7 बजे इबादत हो, 7 बजे कोई होगा इधर? हाँ बोलिए, 6 बजे 7 बजे इबादत हो, 6 बजे बारिश हो, 7 बजे कोई आएगा?
लोग क्या कहेंगे? बारिश होगी। मैं आपको ये शर्मिंदा करने के लिए नहीं, मैं आपको इनकरेज करने के लिए कि जितनी जान फशानी से हो सकता मसीह का काम करो, ताकि आसमान पर अजर क्या हो। हाँ, आप क्या कहेंगे? हम छोटे छोटे काम करके कहते ऐसी बड़ा काम किया। मैं भी ऐसे कहता था, लेकिन अब मुझे फील होता है मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। मुझे फील होता है मैंने कुछ भी नहीं किया आज तक। मुझे ये लगता है कि मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। अभी मैंने मसीह के लिए कुछ भी नहीं किया। मुझे बहुत कुछ करना चाहिए और मुझे जान फशानी करनी चाहिए। और मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, ये नाम, ये शोहरत, ये बिल्डिंग, ये चर्च, ये पैसा, ये गाड़ी, ये दौलत, ये लोग, इधर देखिए, ये सारे कुछ भी नहीं है, ये इधर ही रह रू जाने हैं। आपका जो मसीह के लिए काम किया है वही जिंदा रहना है। खुदावंद, मेरी दिली दुआ है कि आप लोगों को खुश ना करें। मेरी दिली दुआ है कि आप यीशु को खुश करें, उसको खुश करें। मैन प्लीजर ना बने, सारी जिंदगी लोगों को खुश करें, यीशु को खुश करें। मैं दुखों में सबसे ज्यादा हूं। क्या कहेंगे? अगर 100 बंदा तलवार लेके आ रहा है, क्या मैं ये कह सकता हूं यीशु खुदा का बेटा है? हाँ? अगर यहां पर कोई गन लेके आ जाए तो क्या आप कहेंगे कि यीशु खुदा का बेटा है? वो कहे मार दूंगा मैं। तलवार देख के आप क्या कहेंगे? पलूस कहता है ना तलवार, ना गन, ना मुसीबत, ना भूख, ना समुंदर, ना आंधियां, ना तूफान, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? हमें ग्रेस में, हमें खुदावंद में बढ़ने की जरूरत है। मैं देखता हूं अभी हमारे चर्च ने, हम सब ने भी कुछ भी नहीं किया खुदा के लिए। हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम आसमान पर जाएं तो हमारा अजर बहुत बड़ा होना चाहिए। आमीन, आमीन। अब अभी तो हमारे लोग तो चर्च नहीं आते, इन्होंने खुदावंद की बादशाही के लिए क्या करना। तो आपको कोई भी कहता मैं बड़ा काम करता हूं, तो आप उसको क्या कहेंगे? उसको पलूस दिखाइए, अपा ये वे है, तू की कर रहे हैं, की चुके तू? हाँ? कि 2 को झाड़ू मार के, या 2 को गीत गा के, या 2 को इधर दे है, घंटा को आन के पहले दुआ करके या कुछ करके तू चुकिया मसीह नूं? भाई तू तो कुछ भी नहीं है वे है। उसको क्या दिखाओ, क्या दिखाओ? हाँ, कि मसीह के लोग ऐसे होते हैं कि वो ये कोई बड़ा काम नहीं हम कर रहे। मैं भी आप में शामिल हूं। को कलाम सुना के हम बड़ा नहीं गा, हम आपको मैच्योर जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम आपको मैच्योर इसलिए नहीं कर रहे कि आप बैठे रहें। आपको मैच्योर इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को जीते मसीह के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे, जोशीले हो जाएं खुदा के लिए, फूना वाले ना रहो, जोशीले हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे, और अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावन आपको ब्लेस करे, कितने लोग चाहते हैं कि खुदा उन्हें बरकत दे, तो फिर खुदावन के लिए जोशीले हो जाए, खुदावन के लिए जोर पकड़े। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं।